Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Neha. This video is dedicated to Longinus on the sublime. The essay is very important and also very easy when it comes to the exam point of view. The essay harbors only 5 to 7 points that you must know in order to attempt it and to write it on your paper. It's very easy. Let us start it. Before discussing the major sources that are sidelined in this essay, it becomes very much important for you people to know the meaning of the title On the Sublime. On the sublime. Sublime, the word means sublimity, and sublimity is a feeling when you feel transported, when you feel elevated after reading, after watching, after listening to any work of art. जब आपको sublime फील होता है, आपको elevated फील होता है, आपको transported फील होता है. जैसे वर्ड्सवर्थ जाते हैं solitary reaper के song को सुनते हैं, he is spellbound by after listening to the song of that solitary reaper, and he feels that song is following him, and that song is echoing in his very heart and soul. So this is sublimity. Sublimity is an aesthetic point of view of a work when you feel the part of the work exist in you and you exist in that. There is an interrelationship between the text, the writer, the text, and the one who is reading it. Longinus has written this essay on the sublime in an epistolatory form, the most favored form of the classical writers. The work is dedicated to Terentius, and also this work is conjectured in nature. Why conjectured? Because the originality of the work is not known much. ज़्यादा इस वर्क के बारे में पता नहीं है, तो इसको हम कंजेक्टेड ही मानते हैं. ये भी माना जाता है कि ये वर्क लॉन्जाइनस ने लिखा है भी या नहीं, इस पर भी डाउट है. बेसिकली ऑन द सब्लाइम एसे हैज टू मेन थिंग्स. फर्स्ट इज सबलिमिटी एंड सेकेंड इज वेज टू एक्वायर दैट सबलिमिटी, सोर्सेज टू एक्वायर दैट सबलिमिटी. लॉन्जाइनस क्या कहते हैं कि एक आर्टिस्टिक कॉम्पोजिशन में सबलिमिटी होना बहुत जरूरी है, उस वर्क का सबलाइम होना बहुत जरूरी है, और वो सबलिमिटी और सबलाइम के स्ट्रेचर को अचीव करने के लिए ही हैज बेसिकली मेंशन्ड 5 sources of sublimity, and those 5 sources are further divided into 2 sections. Some sources are inborn, natural, and some sources are acquired. What do I mean by that? Acquired sources कौन से होते हैं जिन्हें हम acquire करते हैं? जैसे कि लैंग्वेज, स्टाइल, पोएटिक डिक्शन, जो एक लिखने का हमारा वे होता है, हमारी वोकैबुलरी होती है, कॉम्पोजिशन होता है, मीटर होता है, लैंग्वेज होती है, उसे हम एक्वायर करते हैं. एक वर्ड जो है इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बना होता है. लेकिन इनबॉर्न क्या होता है? हमारे पैशन, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स और हमारी कैपेसिटी की हम उसे कैसे हैंडल करते हैं और उसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं. सो द मेन 5 sources that he has talked about in this essay are: first is grandeur of thoughts, second is capacity to entertain some feelings and emotions, and third is appropriate use of figures of speech, and fourth is noble diction, and fifth is dignified composition. Each and every source has very important part to play. हमारा thought एक work को लेकर के grand होना चाहिए, एक idea जो emergence of idea होता है वो भी grand होना चाहिए, आपके अंदर capacity होनी चाहिए कि आप great थॉट, ग्रेट इमोशन, ग्रेट पैशंस को हार्बर कर सको. ना केवल हार्बर कर सको, उन इनबोर्न नेचुरल सोर्सेस को आप एक्वायर करने के बाद उन सोर्सेस को एक्वायर्ड सोर्सेज की हेल्प से एक्सप्रेस भी कर सके. नोबल डिक्शन आपका होना चाहिए, डिक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, आप अच्छे फिगर्स ऑफ स्पीच से यूज करके कंपैरिजन एंड एनालॉजी क्रिएट करके आप उसको सबलिमिटी की हाइट दे सकते हैं. अब मेरे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि मैम ये ऐसे में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, अब हम इसे अटेम्प्ट कैसे करें? आप इन सोर्सेज को अटेम्प्ट करें, इन सोर्सेज के डिवीजन को अटेम्प्ट करें, एपिस्टोलेटरी फॉर्म को अटेम्प्ट करें, और उसके साथ आप अटेम्प्ट करें
इंटरटेक्चुअल आंसर। मैंने वर्ड्सवर्थ का एग्जाम्पल दिया है, आप विलियम शेक्सपियर के सोनेट का दे सकते हैं, स्पेंसर का दे सकते हैं, आप पोएटिक या प्रोजेक या नॉवल, ड्रामा, जिस भी चीज से आपको सबलाइम फील होता है आप उसे मेंशन कीजिए। और साथ ही मेंशन कीजिए कि ऑन द सबलाइम का एक वर्क और भी आया था जो कि सब्लिमिटी के ऊपर था, लॉन्जाइनस के ऊपर था, जो कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था। तो इंटरटेक्चुअल आंसर दीजिए। विलियम वर्ड्सवर्थ इसके बेस्ट एग्जाम्पल बन सकते हैं, ओड टू नाइटिंगेल हमारे जॉन कीट्स इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल बन सकते हैं, विलियम शेक्सपियर बन सकते हैं। यहाँ पर कंपैरिजंस कैसे हो रहे हैं, सिमिली, मेटाफर्स का कैसे यूज हो रहा है। सो व्हेन सम वर्क बिकम्स अ वर्क ऑफ sublime, it continues to transport you, it continues to elevate you. तो जिन भी वर्क्स, पर्सनल फेवरेट वर्क्स आपसे जिनको आपको एलिवेशन फील होता है, सबलाइम फील होता है, आप उनके मॉडर्न डे एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं। जी हाँ, केवल लॉन्जाइनस के दिए हुए एग्जाम्पल और लॉन्जाइनस के टाइम के एग्जाम्पल्स देना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। आप बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से, बहुत ही इंक्लूसिव तरीके से आज के जो आपने राइटर्स पढ़े हैं, जो आपके राइटर्स फेवरेट हैं, आप उनके एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वाई? टू गिव लेंथ टू योर आंसर। बट ज्यादा बह मत जाना इमोशंस में, अपने इमोशंस को 300 वर्ड्स में कंसाइज रखना। ऑन द सबलाइम इज वन ऑफ द इजीएस्ट ऐसे, one short video and it is done. Stay tuned for more. Thank you.